transitions, that means in that edges, you will be having epsilon input symbols. And once your NFA is complete, then you will try to draw a corresponding DFA out of your NFA. Okay. So let me give you one question here where you will see that in your RE, you will get some epsilon symbols. Like suppose the RE is given like this. R AB star at some concatenation operation A oblique B yeah. So you're looking at this only, you can understand that epsilon is directly given. So definitely in your when you are getting that input symbol epsilon, so that means when you will draw your NFA, you have to put a H having epsilon symbol in it or null string in it. Okay, so this you can accept in your NFA machine because NFA supports epsilon transition, but your DFA doesn't support. So in that case, what you have to do, you have to replace this null transition with something which is not null. So that means you have to draw its corresponding DFA where you do not have any kind of epsilon transition in it. Okay, then only your problem will be solved. Okay, because you are asked to draw a corresponding NFA for it first. Okay, so I will first tell you that how to draw a NFA out of this regular expression. Okay, so let me to the live. So what was my regular expression given? AB star. So this AB is a series connection. We can see from here. And whatever inside this bracket, the whole thing can be null because it is talking about clean closure. I told you that in your clean closure, null string is also acceptable. Including null, you can create all your input strings set. Okay. So here AB star means inside this bracket, the whole thing can be null also. That is why this is a clean closure. So if this is one regular expression, with that, I am writing dot here, but in your question, dot is not given. Why I am writing dot here? To show you that this is in concatenation. So it's a series. Huh? So this is suppose one sub expression or sub regular expression followed by the second sub expression which is coming in series. So in series means it is given A oblique B oblique epsilon. So this is the question given to. Okay. तो अगर हम लोग इसको एक रेगुलर एक्सप्रेशन माने तो इसके लिए हमें एक NFA ड्रॉ करना पड़ेगा. If this is regular expression 1, उसके साथ सीरीज में अगर हम इस दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो मेरा ये टोटल होल रेगुलर एक्सप्रेशन का NFA बन जाए. Right? So this will be my target. So here the whatever input strings you will or input string you will allow, those are consist of A and B including them. So here directly आप देख पा रहे हो कि RE2 में A oblique B oblique epsilon. So this is a parallel connection. Oblique देना मतलब मैंने पहले ही बताया था कि either A के पाथ से आप जाओगे या फिर B के पाथ से आप जाओगे या फिर आप epsilon के पाथ से भी जा सकते हो. So इसलिए इन तीनों में oblique दिया हुआ है मतलब or condition kind of thing. Okay. So first we will deal with this RE1. So इसका हम लोग corresponding NFA draw करेंगे. So इसमें पहले छोटे-छोटे हम लोग टुकड़ों में बांटते हैं कि let's suppose I am having my initial state as 0 state और Q0 भी आप लिख सकते हो. Not to worry. उसमें अगर आप A symbol देते हो, I'm talking about RE1 right? हाँ, अगर A symbol देते हो, so आप suppose एक दूसरे स्टेट 1 पे पहुंच रहे हो, वहां पे अगर आप B को देते हो इन सीरीज बिकॉज दिस इज अ सीरीज राइट, A फॉलोड बाय B, अगर ये सिंबल मिला तो भी आपका फाइनल स्टेट में वो जाएगा. तो ये तो फाइनल स्टेट नहीं जाएगा अभी क्योंकि एक टोटल एक आरी का हिस्सा है जस्ट. सो लेट्स सपोज कि
ए और बी मिलने पे वो स्टेट नंबर 2 पे ट्रांजिशन करे। तो इसका मतलब जितना भी ए बी का ऑकरेंस आएगा, तो ए बी स्टार का मतलब है कि इंक्लूडिंग नल, मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन भी आ सकता है, उसके अलावा सिंगल ए बी, या फिर ए बी, या फिर ए बी का 3 टाइम्स। हाँ, ऑल दीज आर सपोर्टेबल, राइट। ए बी स्टार का मतलब ही ये है। हाँ, तो जब भी आएगा ए फॉलोड बाई बी, जैसे देखो यहाँ पे भी, इफ आई टॉक अबाउट ए बी स्क्वायर, सो ए बी फॉलोड बाई अगेन ए बी। ओके, सो दिस ए एंड बी शुड बी इन सीरीज। सो वही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ए और बी को मैंने सीरीज में ड्रॉ किया है। इट इज शोइंग वन ऑकरेंस ऑफ ए बी, ए फॉलोड बाई बी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एप्सिलॉन लिखा है, इसका मतलब 0 से 2 स्टेट में जाने के लिए वो एप्सिलॉन स्ट्रिंग का भी हेल्प ले सकता है बाई टेकिंग एप्सिलॉन सिंबल। दैट मीन्स नल स्ट्रिंग लेके भी वो 0 से लेके 2 तक पहुंच सकता है। सो आई शुड गिव दैट प्रोविजन ऑल्सो, बिकॉज ए बी स्टार का मतलब ही ये है कि अगर वो एप्सिलॉन भी उसे मिल गया तो भी वो 0 से डायरेक्ट 2 में जा सकता है, बिकॉज इट इज अलाउइंग अ नल इनपुट स्ट्रिंग, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ए बी का ड्रॉ किया है, लेकिन मुझे तो एक्चुअली ए बी स्टार ड्रॉ करना है। तो स्टार ड्रॉ करना है मतलब मुझे प्रोविजन रखना चाहिए कि ए बी का कोई भी नंबर ऑफ ऑकरेंस आ सकता है। सो इफ आई क्रिएट अ लूप हियर, so every time from 0 to 2 it will go, it will always follow this ordering: a followed by b, a followed by b, a followed by b and so on। जितना भी ऑकरेंस आपको ए बी का आए, वो इसको छोड़ के नहीं जा सकता। either it can go directly from 0 to 2 by taking null input symbol, or else ए बी के मल्टीपल ऑकरेंस लेते हुए ही वो 0 to 2 में ट्रांजिशन कर सकता है, बिकॉज योर आर ई इज सेइंग दैट ओनली, इट शुड टेक ए बी का कोई भी नंबर ऑफ ऑकरेंस। स्टार मतलब 1 ऑकरेंस, 2 ऑकरेंस, 3 ऑकरेंस। तो जैसे होगा उसके हिसाब से आपका इनपुट स्ट्रीम इस तरीके का बनेगा, and your system is going to support this। Okay, so this is for your RE1। now RE1 के साथ देखो कॉन्कैटिनेशन पे आपका RE2 भी जुड़ा हुआ है, right। so let us make the separately the RE2। so RE2 मान लो कि स्टेट नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो RE2 में मेरे पास सिंपल 3 ही सिंबल देखने को मिल रहा है। वन इज योर A, another is your B, another is epsilon, और तीनों ही यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। पाइप ऑपरेटर इज ऑलवेज फॉर योर पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका मतलब हमें पैरेलल का ड्रॉ करना चाहिए। सो लेट्स सपोज कि अगर मुझे RE2 सेपरेटली ड्रॉ करना रहा, मान लो कि ये कोई एक स्टेट अगर होता, अच्छा सेपरेट अगर ड्रॉ नहीं भी करते तो भी चल जाएगा, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि 2 ही वो स्टेट है। सपोज 2 से ही हम RE2 को अगर शुरू कर देते, ओके, सो इन दैट केस मेरे पास 2 से कोई भी एक स्टेट में जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। आइदर आई कैन गो वाया A और वाया B और वाया epsilon। okay, so either I can go by A or by B or via epsilon। okay, so let's suppose कि ये होने पे मेरा फाइनल स्टेट में हम पहुंच चुके हैं। This is, let's suppose, talking about your state number 3। okay, so इन दोनों को मैंने यहाँ पे देखो सीरीज में जोड़ा है, because up to this my RE1 exists, RE1, or beyond this my RE2 exists, and both these are in series। ओके, सो ये जैसे आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि देयर आर सम एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। यहाँ पे भी आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशंस ही आपको देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ लूप। सो लूप में करते वक्त आप ए बी के बीच में और कोई तीसरा सिंबल घुसा नहीं सकते। जब आपको ए बी ऐसा चाहिए, सो यहाँ पे सेल्फ लूप आपको क्रिएट करने के लिए यू विल हैव टू हैव अ एप्सिलॉन ट्रांजिशन इन इट। ओके, तो यहाँ पे
ये जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको 3 एज ऐसा दिख रहा है जहां पे आप देखते हो कि एजेस पे एप्सिलॉन लिखे हुए हैं। इसका मतलब जहां जहां एजेस पे एप्सिलॉन लिखे हुए हैं वहां पे एक्चुअली आप नल स्ट्रिंग को अलाउ कर रहे हो। नल स्ट्रिंग इज अ इनपुट स्ट्रिंग और इनपुट where without taking any input symbol you are allowing your present state to go to next state. So that means you are allowing some kind of state transition from your present state to some other state. ओके, सो यहाँ पे 0 to 2 जाने के लिए भी आप देख रहे हो कि एप्सिलॉन सिंबल लेके वो स्टेट ट्रांजिशन को अलाउ कर रहा है। 2 से 3 जाते वक्त भी आप देख रहे हो कि वो एप्सिलॉन या फिर नल स्ट्रिंग को अलाउ कर रहा है। 2 से बैक टू 0 जाने के लिए भी इट इज अलाउइंग स्टेट ट्रांजिशन without having any input symbol in your current state and so on. So that means this is Pakka or NFA, which is having epsilon transition in it. ये एकदम डेफिनेटली एक NFA है जहां पे आपके पास एप्सिलॉन ट्रांजिशंस मौजूद है, having epsilon in it. Okay, but it is not always the case that you are having epsilon transitions present in your NFA. In that case it will be more easier for you to convert your NFA to DFA because there is no any epsilon transition. So just आपको देखना पड़ेगा कि एक particular current state से आप नॉन डेफिनिटनेस को कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हो डेफिनिटनेस में। ठीक है, सो जब हमें वैसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा केस होता है कि Q0 पे A देने पे, ये वाला लाइन जस्ट देखो, Q0 पे A देने पे मान लो कि वो Q0 स्टेट पे ही रह रहा है, या फिर Q0 पे A देने पे वो Q1 में जा रहा है, या फिर Q0 पे A देने पे वो Q2 में जा रहा है। ऐसा अगर केस होता, मान लो इसको हम लोग अगर ड्रॉ करें, सो हाउ इट विल लुक लाइक कि देयर इज वन current state called Q0 and there are 3 edges because this current state is having 3 different next state for the same input symbol. So मैंने यहाँ पे दिखाया अभी Q0 पे A देने पे वो Q0 में ही रह रहा है, so it is creating a self loop. Q0 पे अगर हम A सिंबल देते हैं, so it is staying in Q0 itself. Q0 पे अगर A देते हैं, so it is going to Q1. A देने पे it is going to Q1. Q0 पे A देने पे it is going to Q2 as well. So this can also happen in case of your NFA because nothing is deterministic here, right? In case of your NFA. So for the same input symbol on the same current state, you can have more than one next state available. जैसे कि मेरे इस पिक्चर में आपने देखा कि Q0 is your current state, वहां पे सेम इनपुट सिंबल देखो, सारे एजेस में आपको सेम इनपुट सिंबल ए देखने को मिल रहा है, एंड गिविंग द सेम इनपुट सिंबल यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट स्टेट बिकॉज यू आर अवेलेबल विथ 3 different next states, right? So in that case what you will do, you will create a transition table like this. Okay, so यहाँ पे हम लोग लेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट्स के नाम लिखते हैं और जितना यहाँ पे मेरे पास अलाउड इनपुट सिंबल्स है उनको हम कॉलम बनाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे वैलिड इनपुट सिंबल्स है 3, A, B और C. तो इन दिस केस आई हैव क्रिएटेड 3 कॉलम्स फॉर दिस 3 डिफरेंट इनपुट सिंबल, और हर एक स्टेट में हम इन 3 इनपुट के लिए क्या क्या ट्रांजिशन डिटेल्स होंगे वो हम कलेक्शन करके इस टेबल पे रखते हैं। तो मेरे यहाँ पे Q0 से सिर्फ एक ही इनपुट सिंबल के लिए कलेक्शन है जो ये बता रहा है कि फ्रॉम Q0 स्टेट आई कैन गो टू Q0, I can stay in Q0 itself, I can go to Q1 and I can go to Q2. Okay, so यहाँ पे इन तीनों को ही मुझे कलेक्टिवली एक कॉलम के अंडर पे एक सेल पे मुझे कलेक्शन करके रखना पड़ेगा क्योंकि these 3 can be my possibilities. Possibilities of what? Possibilities of transitioning on giving the input symbol A to the current state Q0.
ओके, सो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज को मुझे एक ही कॉलम के अंडर में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट और करंट इनपुट सिंबल टू दिस स्टेट इज कॉमन फॉर दिस केसेस। ओके, तो यहाँ पे इसको रखने का मतलब क्या है कि जब हमें ऐसा कोई केस मिलेगा जहां पे हमने देखा कि करंट स्टेट पे अगर मैंने ए इनपुट सिंबल दिया तो वो Q0, Q1, Q2 तीन स्टेट पे ही जा सकता है, तो उसको हम लोग कलेक्टिवली नाम दे देंगे कि दिस स्टेट विल बी नोन एज कैपिटल ए। दिस इज जस्ट रीनेमिंग। ओके, आप इस तरीके से भी रख सकते हो कि अगर मेरा करंट स्टेट Q0 पे अगर ए इनपुट सिंबल गया तो ये एक कंबाइंड स्टेट होगा जो कि बनेगा फ्रॉम द यूनियन ऑफ Q0, Q1 एंड यूनियन Q2 से। ओके, लेकिन हम स्टूडेंट्स को ये ऑलवेज सिखाते हैं कि ये यूनियन टाइप में नहीं रखे, आप हो सके तो इसका एक नेमिंग कर दो। Let's call this combined state as a capital A, so that next time you can check on this A as a whole. So what do you mean by check A as a whole? So just look at my next line. जो मुझे पहला स्टेट में सॉरी पहला रो में जो मुझे कंबाइंड स्टेट मिला जिसका नाम मैंने यहाँ पे ए दिया है, लेट मी हाईलाइट दिस ए विथ ग्रीन कलर so that you can understand. जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में जो मैंने नाम दिया है, सो ग्रीन कलर का जो ए लिखा हुआ है, इस ए का मतलब ये है कि दिस इज अ कंबाइंड स्टेट मेड ऑफ Q0 यूनियन Q1 यूनियन Q2. So next time when I will add a row for A as a state in my DFA, so I will check for these three symbols separately. मतलब ए पे कैपिटल ए पे अगर स्मॉल ए इनपुट सिंबल देते हैं तो उसमें क्या हाल होगा, स्मॉल ए पे अगर बी इनपुट सिंबल देते हैं तो क्या हाल होगा, और स्मॉल ए पे अगर सी इनपुट सिंबल देते हैं तो क्या हाल होगा, वो हम लोग सेपरेटली चेक करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन टेबल में जब मैंने एक्स्ट्रा रो ए ऐड किया, सो हमने देखा कि जब हम इन तीनों स्टेट पे मतलब Q0, Q1, Q2 पे जब हम ए इनपुट सिंबल दे रहे हैं, इट इज स्टेइंग इन ए इटसेल्फ। इसका मतलब हो सकता है कि आपके फिगर में इस ए इनपुट सिंबल मतलब अलग अलग से आपने Q0, Q1 और Q2 तीनों का आपने मुआयना किया, और Q1 स्टेट पे ए देने पे आपने सपोज देखा कि वो, मान लो कि आपने देखा कि वो सेल्फ लूप में ही रह रहा है। ठीक है, Q2 पे भी मान लो कि आपने देखा कि ए इनपुट सिंबल देने पे वो Q2 पे ही रह रहा है। सिमिलरली Q0 पे तो था ही पहले से। ओके, सो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली टेल कि Q0 पे अगर हम ए इनपुट सिंबल दिए तो मेरा क्या हुआ, Q1 पे इनपुट सिंबल देने पे क्या हुआ, और Q2 पे इनपुट सिंबल ए देने पे क्या हुआ। तीनों का जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा उनको हमने यहाँ पे यूनियन से जोड़ दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे Q0 पे ए देने पे वो Q0, Q1 और Q2 पे जा रहा था, जबकि Q1 और Q2 के मुताबिक ए सिंबल का कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं था। तो इन दैट केस आई विल कंसिडर कि Q1 पे ए देने पे वो कहीं नहीं जा रहा है, सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू द 5 स्टेट। Similarly, Q2 पे ए देने पे वो कहीं नहीं जा रहा है, so it is going to the 5 state, and combining these three results, I will get कि total Q0, Q1 और Q2 तीनों पे अगर हम लोग A अप्लाई करते हैं, so it is staying in A itself. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पिक्चर कुछ इस तरीके का था। पिक्चर कुछ इस तरीके का था इस ट्रांजिशन टेबल के मुताबिक। कुछ इस तरीके का था कि Q0 पे ए देने पे Q0, Q0 पे ए देने पे Q1, Q0 पे ए देने पे Q2। सो Q0, Q1, Q2 अगर हम
तीनों को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद उसको कैपिटल ए के हिसाब से कंसिडर करते हैं। सो ए पे अगर हम स्मॉल ए सिंबल देने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर चेक करेंगे, सो मुझे इंडिविजुअली उसके सब कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ेगा कि ए देने पे उनका क्या हाल हुआ। ओके, वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे मैंने वही चीज दिखाया है कि ए पे स्मॉल ए इज द स्टेट नेम एंड स्मॉल ए इज द इनपुट सिंबल। ओके, दिस इज माई रो ए, कैपिटल ए। Now let me bigger the size so that you can understand. तो जब मैं चेक कर रही हूँ कि कैपिटल ए पे स्मॉल ए, इसका मतलब कैपिटल ए इज माय स्टेट नेम एंड स्मॉल इज द इनपुट सिंबल गिवन टू दैट करंट स्टेट कैपिटल ए। ओके, सो ए पे स्मॉल ए चेक करना मतलब इंडिविजुअली ए बना है 3 डिफरेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन से, Q0, Q1 एंड Q2। सो हम तीनों के लिए ए का क्या इफेक्ट हो रहा है वो चेक करेंगे और उनको यूनियन करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैंने यूनियन किया तो Q0 पे ए चेक करके मैंने देखा कि वो Q0, Q1, Q2 एज उसका नेक्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। Q1 कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है बिकॉज Q1 में स्मॉल ए के लिए कोई एज है ही नहीं और Q2 में भी स्मॉल ए के लिए कोई एज है ही नहीं, जो कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया। सो यहाँ पे Q1 और Q2 में ए के लिए कोई एज नहीं निकल रहा है। सो अगर नहीं निकल रहा है इसका मतलब वो कहीं नहीं जा रहा है, नेक्स्ट स्टेट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आई विल सिंपली कीप इट एज अ फाइल। सो मैंने यहाँ पे फाइल लिखा है। सो बेसिकली दिस यू विल कीप एज अ सिंबल फाइल। फाइल का सिंबल सबको पता है ना कैसे होता है, दिस इज कॉल्ड फाइल। सो दिस सिंबल यू कैन कीप इन योर कॉपी। तो यहाँ पे फाइल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो हम जब इन तीनों को कलेक्टिवली यूनियन करेंगे सो इट इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन कि रिजल्टिंग मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या हो रहा है, Q0, Q1 और Q2, क्योंकि इनके साथ 5 का यूनियन हो रहा है, राइट। सो दिस Q0, Q1, Q2 मीन्स नथिंग बट योर ए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब मैंने अभी कहा कि इट्स नथिंग बट योर ए। सो दैट इज व्हाई हियर रिटन कि ए स्टेट पे अगर हम ए इनपुट सिंबल दे रहे हैं, दिस इज माय ए इनपुट सिंबल, कॉलम देखो तो वेयर इट इज गोइंग, इट इज गोइंग टू ए स्टेट इटसेल्फ। सो दैट मीन्स इट इज स्टेइंग इन ए। ओके, लेकिन जब मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि ए पे अगर मैं बी इनपुट दे रही हूँ, बी अगर मैं बी इनपुट दे रही हूँ सो इट इज स्टेइंग इन, इट इज गोइंग टू स्टेट कॉल्ड Q1। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे ए मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। सो हो सकता है कि यहाँ पे एक ने ऐसा कहा कि बी इनपुट देने पे आई विल स्टे इन Q1 इटसेल्फ। ओके, एक ने कहा इन Q0, Q1 और Q2 में तीनों में से एक ने कहा कि अगर बी इनपुट दिया जाए तो मैं Q1 पे ही रहूंगी। ठीक है, सो उस केस में जब मैं ए को कंसिडर करूंगी सो ए का मतलब ये है कि Q0, Q1, Q2 एक साथ एज ए होल, Q0, Q1 एंड Q2, है ना। सो तीनों ने ये कहा कि वो Q1 पे रह रहा है। सो इसका मतलब Q0 पे ए का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं, सॉरी बी का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ रहा है इंडिविजुअली। Q1 पे बी का कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ रहा है, और Q2 पे बी का कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं वो हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ रहा है। इस पिक्चर में हमें देखने को मिला कि Q0, Q1 और Q2 में सिर्फ Q1 ने ही बी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, बिकॉज पिक्चर से हमें यही देखने मिल रहा है। इसका मतलब Q0 पे बी देने पे कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं है सो आई विल स्ट्रेटली आई विल राइट कि इट इज गिविंग मी 5 इंफॉर्मेशन। बट Q1 स्टेट पे अगर हम बी इनपुट सिंबल दे रहे हैं सो इट इज शोइंग मी इट इज क्रिएटिंग अ सेल्फ लूप। हाँ, सो इट इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन दैट इट इज going to Q1 state itself, मतलब it is creating a self loop. Similarly, अगर हम Q2 को चेक करें, Q2 पे B देने पे क्या हाल हुआ, so it is not giving me any information, so it is again giving me 5 information. So अगर इन तीनों को हम यूनियन करें, so overall मेरा इंफॉर्मेशन क्या मिला कि A पे, कैपिटल A पे
अगर मैंने b इनपुट सिंबल दिया, स्मॉल b इनपुट सिंबल दिया, so it is staying in, or it is, sorry, it is going to the next state called q1, next state called q1. ओके, सो यहाँ पे वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया कि कैपिटल ए पे अगर मेरा बी इनपुट सिंबल गया, बी इनपुट सिंबल गया, सो इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेट कॉल्ड Q1. अब हम कैपिटल ए पे सी का भी चेक करेंगे. सो एक्चुअली मेरे यहाँ पे टारगेट क्या है कि जैसे जैसे मेरा रो बढ़ता जाएगा, इसका मतलब हर एक प्रीवियस रो में मेरे पास नए नए स्टेट्स कुछ क्रिएट हो रहे हैं, और वो नए स्टेट किसके हैं, वो नए स्टेट्स डीएफए के हैं. मतलब मेरे एनएफए में ये Q0, Q1 और Q2 अलग अलग स्टेट्स थे, लेकिन जब मेरा नया डीएफए क्रिएट होगा, उस डीएफए में Q0, Q1 और Q2 का एक कंबाइंड स्टेट क्रिएट होगा जिसका नाम मैंने दिया है कैपिटल ए. ओके, सो वही चीज एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मेरा रो नंबर 1 पे हम थे, मतलब Q0 के रो में जब थे, उस रो में मुझे एकमात्र नया स्टेट का इंफॉर्मेशन मिला है कैपिटल ए का. इसलिए मैंने जब न्यू रो मैंने स्टार्ट किया, उस रो में मैंने इस न्यू स्टेट का नाम लिखा कैपिटल ए. और इस कैपिटल ए के लिए ए का स्मॉल ए का इफेक्ट क्या हो रहा है वो हम चेकिंग कर रहे हैं. कैपिटल ए पे स्मॉल बी का इफेक्ट क्या हो रहा है वो हम चेकिंग कर रहे हैं. कैपिटल ए पे स्मॉल सी का इफेक्ट क्या हो रहा है वो हम चेक कर रहे हैं. ओके, सो कैपिटल ए पे स्मॉल सी का इंफॉर्मेशन मुझे क्या बता रहा है कि इट इज गोइंग टू द स्टेट Q1 एंड Q2. ओके, सो कैपिटल ए मतलब हो सकता है कि मेरे इस फिगर में हो सकता है कि Q2 से कोई सी नाम का एज निकल रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो Q2 में ही रहा सेल्फ लूप. और Q1 ने लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन दिया कि Q1 से Q2 में ट्रांजिशन हुआ ऑन गिविंग इनपुट सिंबल C. ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे मैं रब करके मैं दिखाती हूँ. अच्छा, यहाँ पे पिक्चर जो दिख रहा है आपको कि Q1 से C देने पे, C इनपुट सिंबल देने पे वो Q2 में जा रहा है, और Q2 में C देने पे वो Q2 में ही रह रहा है. तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैपिटल ए पे C इनपुट सिंबल देने पे क्या इफेक्ट हुआ, स्मॉल c इनपुट सिंबल देने पे व्हाट इज द इफेक्ट. ओके, इसका मतलब इंडिविजुअली मुझे 3 स्टेट के लिए, ए का मतलब है 3 स्टेट का कॉम्बिनेशन, सो Q0 स्टेट पे C का क्या इफेक्ट पड़ा है, दैट आई विल हैव टू चेक. उसके बाद Q1 पे C का क्या इफेक्ट पड़ा है, दैट आई हैव टू चेक. सिमिलरली Q2 पे Q2 पे C का क्या इफेक्ट पड़ा है, दैट आई विल हैव टू चेक. ठीक है, सो इसका मतलब Q0 से C का कोई इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिला, तो सिंपली यू कैन पुट 5, क्योंकि Q0 स्टेट पे C का कोई एज यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा है. Q0 स्टेट पे सिर्फ A का एज आपको दिख रहा है, राइट. Q0 में C का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सो यू विल पुट 5 यूनियन Q1 पे C का इफेक्ट आपको क्या दिख रहा है कि Q1 पे अगर C दे रहे, सो इट इज गोइंग टू स्टेट कॉल्ड Q2, एंड Q2 पे अगर C दे रहे हैं, सो यूनियन Q2 पे अगर C दे रहे हैं, सो इट इज स्टेइंग इन Q2 itself. यहाँ पे पिक्चर से आपको दिख रहा है कि C अगर इनपुट सिंबल Q2 पे दे रहे हैं तो वो Q2 पे रहे. सो इट इज ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट योर Q2 स्टेट.
या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन टेबल जो यहाँ पे आपको दिखा कि Q1 यूनियन Q2 है। सो हो सकता है कि आप इसको उल्टा कर दे कि यहाँ पे आप बोल दे कि Q1 पे C देने पे वो Q2 में जा रहा है। लेट मी रब दिस, यहाँ पे आप उल्टा कर दें तो आपको एग्जैक्टली इस ट्रांजिशन टेबल की तरह ही मिलेगा। Q2 पे जा रहा है और Q2 पे अगर मैं C दे रही हूँ तो वो Q1 पे जा रहा है। मैं पिक्चर में भी थोड़ा चेंज कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इट इज टेलिंग लाइक दिस, Q2 पे अगर हम C दे रहे हैं so it is going to Q1. Why I am going like this according to the table? Because हमें इस पिक्चर का मतलब क्या है वो समझना होगा। तो यहाँ पे इस पिक्चर का मतलब क्या है कि जब मैंने कैपिटल A स्टेट पे C सिंबल देने पे ट्रांजिशन डिटेल मैंने खोजा तो मुझे एक नया स्टेट मिला जो कि कॉम्बिनेशन है Q1 और Q2 दोनों का। Q1 और Q2 दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो Q0 कहीं पे नहीं है। So when I am getting such type of combination, so that means this is a new state I am getting. So let's name this state as capital B. तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल A पे अगर मैंने स्मॉल c सिंबल एज ए इनपुट दिया है, so it is going to the new state or next state called capital B. So this capital B is a combination of two states Q1 and Q2 which is present in your NFA. लेकिन DFA में इसका कोई अस्तित्व अलग अलग से नहीं होगा। This combination will be known as a capital B. Okay, so वही चीज मेरे यहाँ पे दिखाया गया है कि कैपिटल A स्टेट पे जब मैंने C इनपुट सिंबल दिया सो आई रीच टू अ नेक्स्ट स्टेट कॉल्ड कैपिटल B. ओके, सो इसका मतलब इस रो पे, इस A वाले रो पे आपको दो स्टेट का इंफॉर्मेशन मिला। वन इज अबाउट Q1 जिसका अभी भी कोई रो नहीं है, नेक्स्ट इज अबाउट कैपिटल B। इसका मतलब इसका भी अभी भी कोई रो आपने नहीं बनाया। तो रो तभी बनाओगे आप जब उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जितने भी वैलिड इनपुट सिंबल है सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करो। ओके, सो अप टू हियर आपने Q0 का सारा इंफॉर्मेशन ABC ट्रांजिशन होने पे क्या हुआ और A का सारा इंफॉर्मेशन कि ABC इनपुट सिंबल देने पे उनका क्या हल हुआ, नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन का डिटेल क्या है वो आपने क्रिएट किया है। So in this row, you have got two more new states information. One is Q1 and another is capital B. So जाहिर सी बात है कि इन दोनों स्टेट के लिए मुझे दो अलग रो बनाने पड़ेंगे और दोनों के लिए ABC का डिटेल्स हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सो Q1 का जो रो है, Q1 रो में हमने देखा कि कैपिटल A देने पे वो कहीं नहीं जा रहा। सो इसका मतलब Q1 पे कैपिटल A का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ओनली B का इंफॉर्मेशन है। अच्छा, नेक्स्ट Q1 पे B देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे ही रह रहे हैं। सो B देने पे यस वी आर स्टेइंग इन द Q1 इटसेल्फ, इसलिए मैंने एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। और C देने पे वो कहीं नहीं जा रहा है, लेट्स सपोज C देने पे वो कहीं नहीं जा रहा है, लेट्स सपोज। सो अगर वो C देने पे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये रो भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये रो एग्जिस्ट नहीं करती। सो यहाँ पे हमें इसे मिटा देना चाहिए। ओके, सी देने पे अगर नहीं एग्जिस्ट करता इसका मतलब पहले रो में जब मैंने Q1 और Q2 मिला वहां पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब वो कुछ इस तरीके का हुआ होगा, Q2 पे C देने पे वो Q2 पे ही रह रहा था, ऐसा हुआ होगा। Q2 पे जब आपने C दिया, Q2 पे आपने जब C दिया तो वो Q1 का इंफॉर्मेशन दिया एज वेल एज Q2 का इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेती हूँ। It is giving you information that this will be 5 और यहाँ पे आपको Q1, Q2 दोनों इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं।
Q1 और Q2, तभी जाके ये अकॉर्डिंग टू द आपका डायग्राम बनेगा, आई मीन टेबल, अकॉर्डिंग टू द टेबल आपका बनेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 पे C देने पे, दिस वाज Q2, Q2 पे C देने पे वो Q1 पे भी जा रहा है, Q2 पे C देने पे वो Q1 पे भी जा रहा है, और Q2 पे C देने पे वो सेल्फ लूप करके Q2 में ही रह रहा है। ओके, सो इसमें हमें Q0, Q1 और Q2 का एक कॉम्बिनेशन वाला स्टेट B मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल जब मेरा ये ड्रॉ हो जाएगा तो आई विल शो यू कि हाउ इट वाज इन NFA, एंड NFA के बाद जब हमने कॉरस्पॉन्डिंग उसका DFA हमने बनाया, वो कैसे देखने में लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल देख के पहले हम लोग NFA को कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे Q1 का B का इंफॉर्मेशन है और Q1 का C का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज व्हाई दिस डैश इज गिवन। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि Q1 पे C का रियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो इसलिए हमने डैश जो रखा है वो सही रखा है। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज कॉल्ड B। B मतलब B will be recognized in your DFA, but as of now B का मतलब क्या है कि Q1 और Q2 का कॉम्बिनेशन। सो जब हम B पे स्मॉल a चेक करेंगे, स्मॉल a इनपुट सिंबल देने पे क्या हुआ, तो इसका मतलब इंडिविजुअली हम Q1 पे स्मॉल a देने पे क्या हुआ वो चेक करेंगे, और Q2 पे स्मॉल a देने पे क्या हुआ वो चेक करेंगे। ओके, सो Q1 और Q2 पे दोनों पे ही देखो B का कोई एज नहीं होना चाहिए। देखो Q1 और Q2, B के लिए कोई एज है ही नहीं, सो इसलिए हमने यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे मैंने 5 रखा। ओके, so because it is not having any age for this input symbol A, this Q1 and Q2, so we have kept this as a 5. Next, this state is saying कि Q1 और Q2 में कोई एक एटलीस्ट B इनपुट सिंबल लेने पे Q1 पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। So let's check that. Yes, Q1 पे B देने पे वो Q1 में ही रह रहा है। इसका मतलब इसको जब हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी पे स्मॉल बी देने पे क्या हुआ, बी पे स्मॉल बी बी पे स्मॉल बी देने पे क्या इफेक्ट हुआ। ओके, सो बी का मतलब ये है कि Q1 और Q2 दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। इसका मतलब हम चेक करें कि Q1 पे स्मॉल बी देने पे क्या इफेक्ट हुआ है, यूनियन यूनियन Q2 पे Q2 पे स्मॉल बी देने पे क्या इफेक्ट, Q2 पे स्मॉल बी देने पे क्या इफेक्ट, ये हम इंडिविजुअली चेक करें, बिकॉज बी का मतलब ये है कि Q1 और Q2 का कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे B का मतलब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों का कॉम्बिनेशन से ये कैपिटल B बना है, राइट। तो इसका मतलब जब हम स्मॉल b पे चेक करेंगे फॉर माय करंट स्टेट कैपिटल B, सो कैपिटल B जिन जिन से बना हुआ है उनके लिए स्मॉल b का क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम इंडिविजुअली चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एज मतलब NFA डायग्राम आई कैन सी कि Q1 पे B देने पे वो Q1 पे ही रह रहा है, Q1 पे रह रहा है, हाँ सेल्फ लूप। लेकिन Q2 में B का कोई अता पता नहीं है, सो बेसिकली दिस इज गिविंग मी 5 इंफॉर्मेशन। If it is giving me 5 information, then combining these two, I will say कि B पे small b देने पे it is going to the next state called Q1. Okay, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि B पे अगर हम small b दे रहे हैं, so it is going to the next state Q1. Okay, अब C पे देने पे क्या इफेक्ट हो रहा है, C पे इफेक्ट क्या हो रहा है कि Q1 और Q2 में मतलब B पे
सी देने पे, बी करंट स्टेट पे अगर सी देते हैं, सो इट इज स्टेइंग इन बी इटसेल्फ. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फिगर लेट अस चेक कि Q2 और Q1 इन दोनों पे हम सी का इफेक्ट अब चेक करेंगे. ओके, सो इसका मतलब फिर से वही एक ही तरीका. अच्छा, लेट मी रिमाइंड यू ऑल दैट 27 से आप लोग का असाइनमेंट, 27 is today, right? Your assignment in TCS and you can view because I have scheduled from 27 to 30, I guess. And today is 27. Huh? So you view your assignment, and if you are ready with your assignment writing, then you can upload from today. Okay, up to 30th time is given. Huh? So within 30 is the deadline. Within 30, you have to upload your CA1 assignment marks. After that, you will not be able to upload. Okay, and I need some evidence that you have submitted your CA1, otherwise I cannot give you any marks. Okay, so it is to remind you all. Shumon, you mentioned this to your classmates also, that today you can view your TCS and assignment, you can launch that, and you can upload your CA1 assignment up to 30th September. 27 to 30, this will remain open. Okay, so what I was telling about this transition. बी पे स्मॉल सी देने पे क्या इफेक्ट हो रहा है अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, सो आई विल राइट लाइक दिस. बट बी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? बी का मीनिंग है कि कॉम्बिनेशन ऑफ Q1 स्टेट एंड Q2 स्टेट पे सी का इफेक्ट चेक करना. सो इसका मतलब Q1 पे सी का इफेक्ट क्या है, दैट यू आर चेकिंग. यूनियन Q2 पे सी का इफेक्ट क्या है, दैट यू आर चेकिंग. इंडिविजुअल. हाँ, सो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि Q1 पे सी का कोई एज ही नहीं है. सो इट इज गिविंग यू 5 इंफॉर्मेशन. So let's write here 5. But Q2 is giving you definitely the information about C transition. C input देने पे क्या हुआ. तो यहाँ पे Q2 पे अगर C दे रहे, so it can go to Q1 as well as it can stay in Q2 itself. So that means it is giving you two information, two edges, Q1 and Q2. ठीक है, अब इनको कंबाइन अगर करते हैं, so it is equal to Q1 and Q2, क्योंकि 5 के साथ अगर यूनियन होता है तो वही रह जाएगा. So Q1 and Q2. Q1 comma Q2. Q1 comma Q1 comma Q2. Okay, so this is nothing but a B, क्योंकि Q1 और Q2 से ही तो कैपिटल B बना है. सो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या दिखा कि कैपिटल बी पे अगर हम स्मॉल सी इनपुट देते हैं, सो मेरा नेक्स्ट स्टेट कहाँ जाएगा, वो बी में ही रहेगा. ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में आपको दिखाया गया कि बी पे अगर हम सी इनपुट दे रहे हैं, सो इट इज स्टेइंग इन बी. ओके, नाउ इसका मतलब आपका जो NFA का डायग्राम रेगुलर एक्सप्रेशन से बना था, इट वाज समथिंग लाइक दिस, जो आपको ट्रांजिशन टेबल के तौर पे दिया गया. अब इस टेबल से और इस ट्रांजिशन डायग्राम से आपने देख के आपने DFA का ये टेबल बनाया है. ओके, और इस DFA के टेबल से आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर जो है वो ड्रॉ करो. ओके, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कैसा था, क्वेश्चन में आपको, let me draw this.
आपके पास 3 स्टेट था, मान लीजिए कि इसका नाम Q0 था, इसका नाम था Q1 और इसका नाम था Q2। यहाँ पे कुछ एजेस आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। एजेस का इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है कि Q0 पे ए देने पे Q1 में जा रहा है, Q0 पे ए देने पे Q0 पे ए देने पे वो Q2 में जा रहा है, और Q0 पे अगर आप मान लो तरीके का अगर आप ब्लॉक करोगे तो ये ए का ही इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। It is also telling you about your input solution. So you are telling that this is A देने पे, ये भी आप बोल रहे हो A देने पे ही हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने कहा कि A देने पे ही हो रहा है। So this was for the first case कि A देने पे वो Q0 पे ही रह रहा है, A देने पे वो Q1 पे जा रहा है और A देने पे वो Q2 पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजिशन टेबल। इसलिए आपको यहाँ पे Q0 स्टेट से A के लिए ये 3 अलग अलग स्टेट के कॉम्बिनेशन मिले, ओके, विच यू नेम्ड एज अ कैपिटल ए। अच्छा, नेक्स्ट आपने कैपिटल ए के लिए शुरू किया, कैपिटल ए के लिए आपने शुरू किया किसको देख के, आपने देखा कि Q1 से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो Q1 से आपने देखा सिर्फ स्मॉल b के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक। सो इसका मतलब Q1 पे आपने कहा Q1 पे आपने कहा कि आपके पास B सिंबल के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, बी सिंबल में आपने क्या कहा कि Q1 पे अगर बी दे रहे तो वो Q1 में ही रह रहा है सेल्फ में। सिमिलरली Q2 में आपने कहा कि सी देने पे वो Q1 में भी जा सकते हैं और अपने Q2 में ही रह सकते हैं, ठीक। तो वो चीज आपने यहाँ पे देखा, Q2 में अगर वो Q2 में अगर वो सी दे रहे हैं तो वो Q2 में ही रह रहा है, या फिर Q2 में अगर सी दे रहे हैं सो इट कैन गो टू Q1 also. Okay, so this was your NFA. From this NFA, you have converted that NFA to DFA. Now, how you have done this? So यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल को हम लोग जस्ट देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास जब मैंने DFA बनाया तो हमारे पास कितना स्टेट बना है, देखो मेरे पास 4 स्टेट है। One is Q0, another is A, another is Q1 and another is B. Okay, so इसका मतलब NFA से जब मेरा DFA बनेगा, so DFA में बेसिकली यहाँ पे 4 डिफरेंट नोड्स आपके रहेंगे। One is for Q0, another, अभी किसका क्लास है?
সুমন এখন কার ক্লাস আছে? विजय मंडल सर। হ্যাঁ? विजय मंडल सर। আচ্ছা আচ্ছা। Okay, then I will discuss this tomorrow, no? Because sir will wait otherwise. Let me take your attendance first.